We have already covered the syllabus before the midterm, and so today we will start with our final term topics that are going to include in your final term. Today is the topic of our lecture is environmental issues of Pakistan, in which in this we will discuss certain environmental issues. I will first share my screen with you. So this is a topic that we are going to study today, that is environmental issues of Pakistan. Uh, this topic has been categorized into the different subtopics like a definition, types of environment, importance of environment, component of environment, environmental issues, general environmental issues that are prevailing over globally, then the environmental issues in Pakistan, then the carbon dioxide emission issue, then lastly the steps which are necessary to take in order to tackle these environmental issues. So one by one, I will study. We will study these topics. First, we will start with the definition portion, which states that the surroundings in which person, animal, plants live or operate. So this definition tells us about what the environment, what does the environment mean. It states that the surroundings in which people, animal live or operate. यानी इसका मतलब है कि ये वो एक सराउंडिंग्स है इंसान के इर्द गिर्द की तमाम जो चीज़ें हैं उसकी सराउंडिंग्स में फॉल करती हैं, वो तमाम चीज़ें जो हैं उसमें ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, प्लांट्स, लिविंग, नॉन लिविंग थिंग, इवन माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स, ये तमाम की तमाम चीज़ें जो हैं, तमाम के तमाम ऑब्जेक्ट्स जो हैं मिलके इन्वायरमेंट बनाते हैं, इन्वायरमेंट का हिस्सा है। और इन सब क्रिएचर्स की सराउंडिंग्स में जो जो एक एग्जिस्टेंस है जिस चीज़ की, दैट इज द इन्वायरमेंट। वी कैन से दैट द एग्जिस्टेंस around the animals, plants, living beings, non-living beings, microscopic animals. So that surroundings is called the environment. It can be living or non-living things. It include physical, chemical, and other natural forces. Living things live in that environment. They constantly interact with it and adapt themselves to conditions in that environment. Here we can say that environment includes the living things and non-living things. Environment includes physical objects like the things which have got a physical existence, chemicals, and all the natural forces which interact with that environment. फिजिकल एग्जिस्टेंस जो है, जिनको हम टेंजिबल ऑब्जेक्ट्स कहते हैं, वो चीज़ें, फिर केमिकल्स जो हैं, ये तमाम की तमाम चीज़ें जो हैं इन्वायरमेंट का हिस्सा हैं। लिविंग थिंग्स जो हैं, जिंदा जानदार जो हैं, वो इस एनवायरनमेंट में रहते हैं और वो कॉन्स्टेंटली दे आर इन अ कॉन्स्टेंट इंटरेक्शन विद द एनवायरनमेंट, और एंड दे ट्राई टू अडॉप्ट themselves with the environment and they interact with the environment. That interaction can be positive and sometimes that interaction has proved to be negative towards the environment. ये जो इंटरेक्शन है इंसान का, ये देखा गया है कि इस इंटरेक्शन का डिफरेंट तरह के इफेक्ट्स जो हैं वो इन्वायरमेंट पे रूनुमा होते देखे गए हैं। जैसे कि दैट इंटरेक्शन कैन बी अ पॉजिटिव इंटरेक्शन, बट एट द सेम टाइम ह्यूमन इंटरेक्शन हैज प्रूव्ड टू बी टोटल नेगेटिव इंटरेक्शन, जिसकी वजह से जो है माहौल में बिगाड़ पैदा हुआ है। और इस बिगाड़, ये जो माहौल में बिगाड़ पैदा हुआ है जिसको माहौलियाती बिगाड़ कहते हैं, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन कहते हैं स्टूडेंट्स, ये किसी एक कंट्री में नहीं हुआ, ये एक ऐसा इशू है जो कि ग्लोबली जो है ये इशू देखने को मिला है, क्योंकि ह्यूमन इंटरेक्शन जो है, हर तरह के मुल्क के लोग जो हैं उनकी वो डिफरेंट ह्यूमन एक्टिविटीज़ में इंडल्ज होते हैं, और वो ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो हैं वो एक्टिविटीज़ इस तरह की एक्टिविटीज़ हैं जिसमें वो एहतियात नहीं बरतते, और वो केयरलेसनेस की वजह से जो उनका इंटरेक्शन जो है दैट हैज़ प्रूव्ड
to be a negative interaction towards environment, and consequently it turned out into be environmental degradation, the phenomenon of environmental degradation. Then let's move further towards the types of environment. There are different types of environment, and among them, I have picked the three most important types of environment. First is natural environment, second is built environment, third is social environment. So one by one, I will explain to all of you these types of environment. And if you find any difficulty, you can interact with me in upcoming live sessions, or you can even ask through the emails or the Google Classrooms. First is the natural environment. The natural environment includes all living and non-living things occurring naturally on the earth. Composition of natural environment includes the lithosphere, the hydrosphere, the atmosphere, and biosphere. When we talk about the natural environment, then it states that, or the scientists have come to a conclusion through the consensus that natural environment includes all the living and non-living things which are naturally occurring on the earth. यानी कि environment के अंदर, माहौल के अंदर जो चीज़ें कुदरती तौर पे एग्जिस्ट कर रही हैं, इंसान के लिए अल्लाह ताला ने बहुत सारे वसाइल जो हैं, नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं वो क्रिएट किए हुए हैं जो कि उसके बेनिफिट के लिए, और इंसान का इंटरेक्शन उन नेचुरल रिसोर्सेज के साथ होता है। वो जो रिसोर्सेज माहौल में पाए जाते हैं, वो तमाम रिसोर्सेज मिलके एक नेचुरल इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं। और उस नेचुरल इन्वायरमेंट में कौन कौन सी चीज़ें हैं, डिफरेंट स्फीयर्स हैं जो नेचुरली जो हैं वो क्रिएटेड है, ऑलरेडी क्रिएटेड है फॉर द बेनिफिट ऑफ ह्यूमंस, जिसमें लिथोस्फेयर है, हाइड्रोस्फेयर है, एटमोस्फेयर है, एंड बायोस्फेयर हैं। ये वो तमाम स्फीयर्स हैं जो मिलकर एक नेचुरल इन्वायरमेंट का हिस्सा बनाते हैं। जैसे मैंने आप लोगों को अपने प्रीवियस लेक्चर्स में भी डिस्कस किया था, ओजोन लेयर है जो कि दैट इज अ पार्ट ऑफ द नेचुरल इन्वायरमेंट। That is basically a layer between the sun and the rays that are coming towards the humans. So that ozone layer acts as a protection layer between them. That the airs that the sun rays exposure to the humans, इस एक्सपोजर के बीच में एक ओजोन लेयर जो है वो बनाई गई है कुदरती तौर पर, जिससे वो सन रेज जो है वो फिल्टर्ड होकर आती हैं और इंसान कहीं ना कहीं इन चीज़ों से बेनिफिट हासिल कर रहा है। बट अनफॉर्चुनेटली, ड्यू टू द नेगेटिव ह्यूमन इंटरेक्शन विद द एनवायरनमेंट, वी हैव सीन दैट फ्रॉम द लास्ट फ्यू years it has been observed that ozone layer has been depleted because of this environmental issues. इन तमाम माहौलियाती इश्यूज की वजह से ये चीज़ देखी गई कि जो ओजोन लेयर है, जो कि कुदरती तौर पर इंसानों के रखी गई, उस ओजोन लेयर में बिगाड़ पैदा होना शुरू हो गया। और वो बिगाड़ जो है वो जो है उसके नेगेटिव असर जो है वो क्रिएट हो रहे हैं, जिससे हम कह सकते हैं बहुत सारी स्किन डिजीजेस जो हैं वो इंसानों में देखने को मिली ओवर द लास्ट फ्यू ईयर्स। Then we have a built environment. Built environment refers to the human-made surroundings that provide the settings of human activity. By built environment, we mean that this is an environment that is created that is the outcome of the human activity. Built environment वो है जो इंसान ने अपनी सराउंडिंग्स में अपनी एक्टिविटी, अपनी सरगर्मियों के नतीजे में जो इन्वायरमेंट क्रिएट किया, we can say that this has been created artificially, not naturally. That's why it has been categorized into the category of built environment.
क्योंकि एक जो नेचुरल एनवायरनमेंट है स्टूडेंट्स, वो एनवायरनमेंट है जो कुदरती तौर पर एग्जिस्ट करता है, और उस कुदरती एनवायरनमेंट में जो है इंसान का कोई अमल दखल नहीं है, दैट इज बियॉन्ड ह्यूमन कंट्रोल। उसमें इंसान चेंजेस नहीं कर सकता, लेकिन इंसान की सरगर्मियों की वजह से उसमें चेंजेस जो है वो देखने को मिली है। सो ये जो बिल्ट इन एनवायरनमेंट जो है, ये वो एनवायरनमेंट है जो इंसान का अपना क्रिएटेड एनवायरनमेंट है, और इस एनवायरनमेंट से इंसान ने बेसिकली अपने आप को बेनिफिट देने के लिए इस एनवायरनमेंट को आर्टिफिशियली क्रिएट किया, बिल्ड किया। Then we have a third type of environment, that is social environment. The social environment refers to the immediate physical and social settings in which people live or in which something happens or develops. By social environment, we mean that this is basically an immediate physical and social settings in which people or humans live, in which something happens or develops. ये वो environment है that is socially created, that is the outcome of the social interaction of the humans. This environment has got a physical existence and is the outcome of the social setting of the humans in which they live, and in which all their incidents happen. जिस ये वो एक environment है, socially created environment है, ये human interaction का outcome है, और fact we can say that human social interaction का outcome है, जिसकी एक physical existence जो है वो exist करती है। ये भी basically इंसान ने अपने आप को facilitate करने के लिए, because man is a social animal, he cannot live in isolation. I have discussed with you a social contract theory in class as well, that in the Stone Age social interaction theory जो है, this theory talks about the human evolution in the Stone Age period, जिसमें इंसान जो था he was living in isolation, and later on he realized that he cannot live in isolation. He started to feel certain fears in his surroundings. There were two types of fears. First, the fear of property, and second is the fear of themselves. एक अपनी एग्जिस्टेंस के बारे में जो थी, इंसानों को एक खौफ क्रिएट हो गया, और दूसरा जो खौफ था वो क्रिएट हो गया अपनी प्रॉपर्टी से रिलेटेड, बिकॉज एट दैट पीरियड ऑफ टाइम नेचुरल एनवायरनमेंट वाज वेरी क्रूशियल, was very that was actually the circumstances were really not favorable to humans, unfavorable to humans rather I should say, क्योंकि इंसान जो था उसके पास एक कोई फैसिलिटीज नहीं थी, वो एक नेचुरल एनवायरनमेंट में रहता था, और नेचुरल एनवायरनमेंट में सरवाइव करना विद द पैसेज ऑफ टाइम मुश्किल होता जा रहा था। सो ही स्टार्टेड रियलाइजिंग दिस थिंग दैट कि अब वो आइसोलेशन में नहीं रह सकता, उसको फियर्स स्टार्ट हो गए, फियर ऑफ हिज प्रोटेक्शन एंड हिज प्रॉपर्टीज प्रोटेक्शन, और इन सब चीज़ों से रिलेटेड उसने एक सोल्यूशन जो था वो ढूंढा। दैट सोल्यूशन इज द यूनिटी ऑफ ह्यूमन। इंसान जो है उनको यूनिटी जो है रहना पड़ेगा, और उस यूनिटी से ही वो डिफरेंट चीज़ों से उनका बचत हो सकती है और सर्वाइवल हो सकता है। क्योंकि फियर्स जो थे वो एनिमल्स से थे, वाइल्ड एनिमल, वो ये थे कि माहौल इस माहौल की सख्ती को वो बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। तो फिर उन्होंने इसका सोल्यूशन निकाला कि वो यूनिटी में रहना शुरू करें। तो एग्रीमेंट्स उन्होंने किए which are the very initial agreements of the human history. There were two agreements that they conducted. एक जो एग्रीमेंट था वो ये था कि प्रोटेक्शन उनकी अपनी ज़ात से रिलेटेड प्रोटेक्शन उनको प्रोवाइड की जाएगी, एंड सेकेंडली उनकी प्रॉपर्टी जो है उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाएगी। बट द क्वेश्चन अराइजेस, हु इज गोइंग टू गिव देम दैट प्रोटेक्शन? So all of them united on a single agenda, and the agenda was to choose a powerful person
among themselves, and they will surrender their certain rights before him, and consequently he is going to give them the protection of their lives and the protection of सोशलाइजेशन का जो प्रोसेस था, ह्यूमन एवोल्यूशन, जो हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन है उसमें ये स्टार्ट हुआ। सो बात यहाँ से स्टार्ट हुई थी कि सोशल इन्वायरमेंट, क्योंकि इंसान जो है उसको एक ऐसा इन्वायरमेंट चाहिए होता है कि जिसकी वजह से वो जो है एक सरवाइव करे, और वो इन्वायरमेंट उसको वहीं से मिल सकता है जहाँ पे वो खुद क्रिएट करेगा। ठीक है, नेक्स्ट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ एलिमेंट। देन द क्वेश्चन अराइजेस व्हाई वी नीड एनवायरनमेंट, हमें एनवायरनमेंट की क्यों जरूरत है, क्या ऐसे इश्यूज हैं कि हमें एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना जरूरी है, हमें एनवायरनमेंट को बेहतर जो है वो करने की जरूरत है, क्या हम एनवायरनमेंट के बगैर सर्वाइव नहीं कर सकते। So all these questions are going to answer in this particular slide that deals with the subtopic of importance of environment. So it states that environment is the key for existence of life on Earth. Without it, there can be no life on Earth. In our solar system, there are other big planets but have no life due to the lack of environment beings. For healthy living, better soil, home, humidity, climate, all these things are required for the survival of humans. So इतनी क्रिएट होता है कि क्यों हमें जो है वो इन्वायरमेंट की ज़रूरत है, ऐसा क्या रीज़न है कि क्या हम इन्वायरमेंट के बगैर सर्वाइव नहीं कर सकते, हमें क्यों जो है वो इन्वायरमेंट की ज़रूरत पेश आती है, क्या हम इन्वायरमेंट के बगैर सर्वाइव नहीं कर सकते। ये जो क्वेश्चन है ये आंसर इस वे में हम इसको करते हैं कि इन्वायरमेंट एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है एक वी कैन से दैट एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक थिंग है जो कि ह्यूमन एग्जिस्टेंस के लिए इस ज़मीन पर इंसान के सर्वाइवल के लिए एक बेहतर और अच्छा माहौल ज़रूरी है। एक तो ये फिजिकल एग्जिस्टेंस है ना, कि एनवायरनमेंट एक ह्यूमन एग्जिस्टेंस में, एक ह्यूमन की सराउंडिंग्स में। एक अगर हम एक अपनी प्रैक्टिकल लाइफ से अगर हम बात करते हैं कि हम अगर हम एक फैमिली लाइफ है, हमारे रिलेटिव्स के साथ हमारा एक फैमिली स्ट्रक्चर है, अगर हमारी फैमिली में भी एक हेल्दी एनवायरनमेंट हमें प्रोवाइड नहीं होगा, हमें अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, लोग हमारे फैमिली के लोग हमारे रिलेटिव्स अगर हमारे एम्स को, हमारे कैरियर को, हमारी लाइफ की प्रॉब्लम्स को अगर अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, हम एक हेल्दी एनवायरनमेंट नहीं प्रोवाइड करेंगे, तो हम साइकोलॉजिकली ये चीज़ हमें इफेक्ट करना शुरू हो जाएगी कि हमारी जो एग्जिस्टेंस है, हमारे इश्यूज जो हैं उनको अंडरस्टैंड करने वाला कोई नहीं है सराउंडिंग। सो ये तो एक बहुत छोटी सी एग्जांपल है कि इंसान को सर्वाइव करने के लिए एक हेल्दी एनवायरनमेंट की ज़रूरत है और वो एक हेल्दी सोशल एनवायरनमेंट की ज़रूरत है। सो अगर ये एक छोटी सी एग्जांपल से मैंने आपको बताया कि हमें एक सोशल एनवायरनमेंट, बेहतर सोशल एनवायरनमेंट की ज़रूरत होती है, तो ये तो एक नेचुरल एनवायरनमेंट तो उससे भी बढ़ के एक इसके पैरामीटर्स ब्रॉड है। अगर हम सर्वाइवल हमारा फिजिकली नहीं हो सकता, अगर हमारे पास सराउंडिंग्स में एक नेचुरल एनवायरनमेंट, एक नेचुरल हेल्दी एनवायरनमेंट नहीं होगा। जैसे कि क्लास मैंने आप लोगों को जब मिड टर्म में एक टॉपिक पढ़ाया था, डिसीजंस ऑफ पाकिस्तानी जुडिशरी रिगार्डिंग द एनवायरमेंटल इश्यूज इन पाकिस्तान। सो उसमें मैंने बहुत इंपॉर्टेंट एंड लैंडमार्क केस आप लोगों को पढ़ाया था, शैला ज़िया वर्सेस वापडा अथॉरिटीज। सो उस केस में भी सेम बात थी कि रेजिडेंशियल एरिया में वापडा अथॉरिटीज जो थी, दे वर प्लानिंग टू इम्प्लांट अ ग्रिड स्टेशन इन द रेजिडेंशियल एरिया। सो शैला ज़िया एंड the other residents of that residential area filed a petition in the court under Article 184 subclause 3 of the Constitution of Pakistan, and they filed the basis of that petition was the Article 9 and 14 of the Constitution of Pakistan, जिसमें जो बात करता है बेसिकली राइट टू लाइफ की एंड डिग्निटी ऑफ मैन। अब उसमें ये चीज़ क्लियरली बताई गई थी कि एक पिटिशनर्स जो थे उनके साइड से एक बात बार बार रिपीट हो रही थी, that if they implant the grid station in the residential area, that grid station will produce a magnetic field, will create a magnetic field, and this magnetic field will consequently produce
certain rays that are going to cause serious health hazards on the human lives. So this is the high time to advise or direct or to issue the direction against the WAPDA authorities so that they should not implant a grid station in the residential area. So the court also kept in their mind that this was mentioned in that landmark case that the human health should be on priority. Nobody should be allowed to create a bad environment around the human beings, क्योंकि आप इंसान जो है राइट टू लाइफ जो है उसकी बेसिकली इंटरप्रिटेशन नहीं हुई थी, और उस आर्टिकल में राइट टू लाइफ में वर्ड लाइफ की इंटरप्रिटेशन की गई जुडिशरी के थ्रू, एंड they made it very clear that the word life does not mean that the mere vegetative and animal life. The word life means that a healthy that man deserve the healthy environment as well. एक हेल्दी इन्वायरमेंट इंसानों के पास जब तक नहीं होगा वो अपनी लाइफ में कोई भी प्रोडक्टिव एक्टिविटी जो है परफॉर्म नहीं कर सकते, और ये ग्रिड स्टेशन से तो बहुत ज्यादा सीरियस टाइप का हेल्थ हैजर्ड जो है वो क्रिएट होने के चांसेस हैं। सो वापडा अथॉरिटीज को एक कमीशन अपॉइंट किया गया नेस्पा का, और उस कमीशन को कहा गया, सख्ती से डायरेक्शन दी गई कि आप जो है अपनी रिपोर्ट जो है वो पेश करें कुछ दिनों में सुप्रीम कोर्ट को, और सुप्रीम कोर्ट उसमें फिर फाइंडिंग्स के थ्रू जो कमीशन जो फाइंडिंग्स पेश करेगा उस फाइंडिंग से इस चीज को देखा जाएगा कि क्या हेल्थ हैजर्ड्स एक्चुअली में पोज हो रहे होंगे इस स्टेशन के थ्रू, या दिस इज जस्ट अ मिथ। सो ह्यूमन जो इन्वायरमेंट जो है एक हेल्दी इन्वायरमेंट की ये इम्पोर्टेंस है, और इसीलिए जो है इंसान जो है वो एक नेचुरल इन्वायरमेंट में ही सर्वाइव कर सकते हैं, एक अच्छी हेल्दी इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर सकते हैं। इसीलिए ये जो है ये एक सब्जेक्ट इवॉल्व हुआ एज एन एक्सटेंशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ, और इस सब्जेक्ट में ग्लोबली बहुत सारे कंसर्न्स जो थे, इन्वायरमेंटल कंसर्न्स, इन्वायरमेंटल इश्यूज जो थे वो रेज किए, और दे ब्रॉट द स्टेट्स ऑन द सिंगल एजेंडा that environmental concerns should be addressed on the priority basis. Otherwise, there will be a time that we are going to lose this natural environment in its natural shape. So ये जो है बात जो है आपको केस लॉ के थ्रू बताने का मकसद ये था कि इंसान के लिए माहौल की, इन्वायरमेंट की इम्पोर्टेंस है, और अगर आप इस माहौल को अगर आप जो है नहीं इंश्योर करेंगे हेल्दी इन्वायरमेंट को, तो ये जो है इंसान के लिए अगले आने वाले वक्त में नेक्स्ट जनरेशन के लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। सो इन्वायरमेंट जो है वो एक की एग्जिस्टेंस है, एक बहुत इंपॉर्टेंट की फैक्टर है फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमन लाइफ ऑन अर्थ। ह्यूमंस कैन नॉट सर्वाइव इफ दे डू नॉट गेट द हेल्दी इन्वायरमेंट। इसलिए हेल्दी इन्वायरमेंट के लिए ज़रूरी है कि बेटर सॉइल हो, होम्स हो, बेटर इन्वायरमेंट हो, होम्स की सराउंडिंग्स में ह्यूमिडिटी जो है उसके इशू को एड्रेस किया जाए, एंड क्लाइमेटिक चेंजेस जिस इशू की वजह से आ रही हैं, स्टेट्स को अपने अपने डोमेस्टिक लेवल पर ग्लोबली तो वो इश्यूज एड्रेस होते हैं, बट देयर इज अ डायर नीड टू इनकॉर्पोरेट दोस इंटरनेशनल लेजिस्लेशंस इनटू आवर डोमेस्टिक लॉज। डोमेस्टिक लॉज के थ्रू अगर हम इन चीज़ों को टैकल कर सकते हैं तो फिर आहिस्ता आहिस्ता ग्लोबली भी चीज़ें जो हैं वो कंट्रोल होना शुरू हो जाएंगी। सो क्लाइमेटिक चेंज जो है उसको एक बहुत हेल्दी वे में जो है वो एड्रेस करने की ज़रूरत होती है। Then we have another subtopic of the components of the environment. There are two components of the environment. First is the abiotic component and second is the abiotic component. So now we will discuss one by one both these components of the environment. First is the biotic component. All the living things in ecosystem are a part of the biotic component of the environment, like producers, consumers, and decomposers. Students, you have already studied these two components of the environment in your biology as well. That there are biotic and abiotic components, which combinedly make are the very important elements or components of the environment. Abiotic जो हैं वो एक इकोसिस्टम में रहने वाले वो तमाम लिविंग बींग्स हैं जो उनमें प्रोड्यूसर्स भी आते हैं, ठीक है, और प्रोड्यूसर्स के साथ कंज्यूमर्स भी हैं। ह्यूमन जो है वो मोस्टली कंज्यूमर्स में आते हैं कि हम जो है वो नेचुरल एनवायरनमेंट के कंज्यूमर्स हैं,
हम तमाम नेचुरल एनवायरनमेंट को कंज्यूम करने वाली क्रिएचर हैं. So we are a part of this biotic environment or component. Then the decomposers, कि कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो डिकम्पोजिशन जो है उसके प्रोसेस में जो है वो हेल्पफुल होते हैं, और उनकी हेल्प के बगैर जो है हम चीज़ों को डील जो है वो नहीं कर सकते. Then abiotic component, all non-living parts in the ecosystem are the components of the abiotic environment. Temperature, air, and sunlight. So now we are in a position to make a clear distinction between the biotic and abiotic components. Biotic components are all the living, we can say that beings, like वो तमाम जिंदा जानदार वो किसी भी फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकते हैं. प्रोड्यूसर्स की फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकते हैं, कंज्यूमर्स की फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकते हैं, एंड डिकम्पोजर्स की फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर सकते हैं. और एबायोटिक कंपोनेंट्स जो हैं वो इन्वायरमेंट का नॉन लिविंग पार्ट जो है उसमें शामिल होते हैं. जैसे टेम्परेचर जो है, हरारत जो है, हवा जो है, सनलाइट जो है, ये भी इंसान के लिए उतना ही ज़रूरी है उसके सर्वाइवल के लिए. ये इंसान को सर्वाइव करने में ये जो है हेल्प करते हैं और इन्वायरमेंट का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो हिस्सा है. सो ये एबायोटिक नॉन लिविंग थिंग्स जो है वो बनाते हैं, और बायोटिक जो है वो तमाम लिविंग ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो मिलकर बनाते हैं. एंड वी ह्यूमंस फॉल विद इन द कैटेगरी ऑफ बायोटिक कंपोनेंट ऑफ थिंग्स. आई होप स्टूडेंट्स यहाँ तक आप लोगों को जो है वो समझ आ गया हो. Still I'm planning to conduct your online sessions, क्योंकि I really think that in online interactive sessions we can create an environment that we create in our regular classrooms. उसमें ये है कि आप लोग जो है साथ साथ क्वेश्चन आंसर्स भी कर सकते हो, एंड उसमें मुझे आइडिया भी हो जाएगा कि आप लोग को लेक्चर जो है वो समझ आ रहे हैं या नहीं समझ आ रहे, और जो आप लोगों के कंसर्न्स हैं, जो आप लोगों का फीडबैक है, उसके थ्रू हम अपने लेक्चर्स को और जो है वो बेहतरी की तरफ लेके आ सकते हैं. सो इन द नेक्स्ट लेक्चर्स आई एम प्लानिंग टू कंडक्ट ऑनलाइन सेशंस, जिसमें आई थिंक हम जो है वो बेहतर तरीके से उस चीज़ को कंडक्ट कर सकते हैं. The next is the environmental issues. The environmental issues are any such issues created due to the human activity and cause harm to the environment. Environmental issues हैं वो तमाम इंसिडेंट्स जो हैं जो कि ह्यूमन मोस्टली ये होता है ह्यूमन इंटरेक्शन की वजह से. ये नेचुरली जो है माहौल में बिगाड़, कम ऐसी चीज़ें हैं जो कि कुछ हम बोलते हैं जिनको एक्ट्स ऑफ द गॉड. आप लोगों ने टॉर्च में पढ़ा होगा. एक्ट्स ऑफ द गॉड जो हैं वो दे आर द इनएविटेबल इंसिडेंट्स which are actually beyond human control, or they are actually happen because they occur naturally. ह्यूमन जो है वो उनके कंट्रोल से बाहर होती है वो चीज़, और वो एक्चुअली में अगर हो जाते हैं और इंसानों के कंट्रोल के बगैर, सो उन चीज़ों से भी माहौल में बिगाड़ पैदा होता है. नो डाउट हम अगर फ्लड्स की बात करें तो ये जो ऑस्ट्रेलिया में जो फायर बुशेस जो जिनका कॉन्सेप्ट था कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर में राइज होने की वजह से जो थे जंगलात उनमें आग लग जाती है समटाइम्स, और फ्लड जो है या अर्थक्वेक्स जो हैं, ये वो चीज़ें हैं स्टूडेंट्स, ये इनएविटेबल इंसिडेंट्स होते हैं, या एक्ट्स ऑफ गॉड भी इनको कहते हैं. इन चीज़ों से भी इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन होती है, बट मोस्टली देखा गया है कि इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन अब के टाइम में जो हो रही है वो मोस्टली ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से हो रही है. इंसानों का जो इंटरेक्शन है वो इस तरह का इंटरेक्शन है कि जिसके थ्रू हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा माहौल में बिगाड़ पैदा होना शुरू हो गया है. And I have picked all those important environmental issues that are need to discuss in the class. The first is air pollution. The presence of toxic chemicals or components in the air at levels that pose a health risk. ये मैंने यहाँ पर स्टूडेंट्स एक डायग्राम के थ्रू भी इसको आप लोगों को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि एयर पोल्यूशन जो है वो बेसिकली जो है वो क्रिएट होती है ह्यूमन इंटरेक्शन की वजह से, ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से. वो ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो हैं वो किस तरीके से होती हैं कि आपको पता है इंडस्ट्रियलाइजेशन का पीरियड है, दौर है. इसमें तमाम जो कंट्रीज़ हैं वो डोमेस्टिक लेवल पर इंडस्ट्रियल जो है वो
एक्टिविटीज़ जो है वो कंडक्ट करेंगे और इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ की वजह से जो है केमिकल जो है वो वेस्ट जो है वो भी क्रिएट होते हैं और वो भी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। और इसकी फैक्ट्रियों की वजह से निकलने से जो धुआं जो निकलता है फैक्ट्रियों से वो एक बहुत बड़ा जो है एक सीरियस हेल्थ रिस्क जो है वो पोज कर रहा है और जो उसको बोलते हैं एयर पोल्यूशन जो है वो क्रिएट हो रही है। एयर पोल्यूशन एक तो एक्सेसिव ट्रैफिक की वजह से भी होती है, एक्सेसिव ट्रैफिक होगी, व्हीकल्स होगी, एक्सेसिव व्हीकल्स होगी जिस स्टेट के अंदर, वहाँ से उनसे निकलने वाला जो धुआं होगा एक तो वो एयर पोल्यूशन का बाइस बनता है। दूसरा ये जो फैक्ट्रीज जो है, इंडस्ट्री जो है, उनसे निकलने वाला जो धुआं भी है वो भी एक बहुत बड़ा, बल्कि बहुत ज़्यादा बड़ा एक एलिमेंट है जिसकी वजह से ये एयर पोल्यूशन का इशू क्रिएट होता है। अगर आप लोगों को पता हो कि एक स्मोक का इशू जो है वो क्रिएट हुआ पिछले कुछ टाइम में देखने को मिला, पिछले कुछ सालों से ये हर जो है जो एक जब एक ट्रांजिशनल पीरियड होता है वेदर में तब ये इशू क्रिएट हो जाता है कि बेसिकली जो है जब हम फसलों की कटाई करते हैं और फसलों की कटाई के बाद उनको जो रिमेन्स होते हैं उनके को जला दिया जाता है, बर्न कर दिया जाता है। जब वो चीज़ जलाई जाती है तो इससे जो है वो जो धुआं पैदा होता है वहाँ से ज़्यादातर एक स्मोक का इशू क्रिएट होता है जिससे इंसानी हेल्थ पे बहुत ज़्यादा जो है वो मुज़र असरात क्रिएट होते हैं और एक ग्लोबली जो है वो इन्वायरमेंट, क्योंकि वो जो स्मॉग है उस पर ट्रांस बाउंड्री इफेक्ट होता है, वो सिर्फ अपनी स्टेट के लोगों पर एक बुरा असर नहीं डालता बल्कि सराउंडिंग्स में भी जो सब कुछ हो रहा होता है उन लोगों पर भी वो एक बुरा असर जो है वो क्रिएट कर रहा होता है। सो दिस इज वन ऑफ द फर्स्ट फॉर्म्स ऑफ द पोल्यूशन व्हिच इज एक्चुअली पोजिंग अ सीरियस hazard to the human health. Then we have another type of pollution, that is water pollution. The contamination of a stream, river, lake, ocean or any other stretch of water, depleting water quality and making it toxic for the environment and the humans. अब स्टूडेंट्स ये वो वाटर पोल्यूशन है, जैसे मैंने आप लोगों को याद होगा, मैंने आप लोगों को थोड़ा माइंस वाला जो था एक आप लोगों को बताया था, केस स्टडी करवाई थी पाकिस्तान का एक केस था, उसमें भी सेम इशू था कि वहाँ पर सिर्फ एक ही वाटर कैचमेंट एरिया था जहाँ से माइंस के एरिया के जो लोग थे उनको पानी का एक मुख्य रिजर्वॉयर था और वहीं से लोगों को वाटर सप्लाई जो थी वो मिलती थी। उस वाटर सप्लाई की वजह से उस वाटर सप्लाई में कंटेमिनेटेड वाटर जो था, माइन से निकलने वाला पानी जो था वो मिक्स होना शुरू हो गया था और वो जो था पानी वो एक सीरियस हेल्थ कंसर्न जो था उसने क्रिएट करा था वहाँ पे रहने वाले लोगों के लिए। इसीलिए उन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में की ओरिजिनल जुरिसडिक्शन को इन्वोक किया आर्टिकल 184 सब क्लॉज 3 के तहत और इस चीज़ को इंश्योर किया कि एक ह्यूमन हेल्थ जो है वो इफेक्ट हो सकती है इस कंटेमिनेटेड वाटर के थ्रू। सो इस चीज़ का सीरियस नोटिस लिया जाए और इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ का नोटिस भी लिया और उस चीज़ को रिजॉल्व करने के लिए जो थे वो ऑर्डर्स जारी किए। सो यहाँ पर इस केस लॉ को मेंशन करने का मकसद ये है कि ये बताना ज़रूरी है कि वाटर पोल्यूशन बहुत ही एक सीरियस टाइप की पोल्यूशन है जो कि ह्यूमन हेल्थ पर बहुत ज़्यादा मुज़र असरात जो है वो क्रिएट करती है और उसका एक्चुअली में बहुत बैड इफेक्ट्स और कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिलते हैं। और ये भी एक्चुअली होता है ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से कि फैक्ट्री से निकलने वाला जो वेस्ट होगा कहीं ना कहीं जो है आपके नहरों में या साथ के जो नदी नाले जो हैं उनमें वो मिक्स होता है और फिर आगे कहीं ना कहीं शहरों में अर्बन एरियाज में स्पेशली वो पीने वाला जो पानी है वहाँ पर उसके साथ वो मिक्स हो जाता है। और कहीं ना कहीं अब आप अगर हम लाहौर की एग्जांपल ले लें, लाहौर इज अ मेट्रोपॉलिटन सिटी, लेकिन लाहौर में वन ऑफ द मोस्ट कॉमन हेल्थ इशू इज वाटर पोल्यूशन। ये पानी जो है, साफ पीने का पानी जो है वो अवेलेबल नहीं है। और फिर अगर हम बात करें तो एक दूसरा स्कैम इसमें स्टार्ट हो जाता है कि फिल्टर्ड वाटर का एक स्कैम है। कंपनी जो है दे आर क्लेमिंग टू प्रोवाइड फिल्टर्ड वाटर बट एक्चुअली they are the water that they are claiming to be the filtered water that is not actually filtered water. So scam को के बारे में नोटिस भी लिए गए बट कोई फाइनल रिपोर्ट जो थी वो देखने को नहीं मिली। और पाकिस्तान में स्पेशली लाहौर जैसे एक मेट्रोपॉलिटन सिटी में ये एक बहुत बड़ा जो है इशू बन चुका है और रीजन यही है कि कंटेमिनेटेड वाटर जो है वो मिक्स हो रहा है, जो वाटर सप्लाई जो है। Then we have another pollution that is soil and land pollution.
Land pollution is the destruction of the Earth's land surfaces, often directly or indirectly as a result of the man activities and the misuse of land resources. लैंड पोल्यूशन जो है स्टूडेंट्स, वो बेसिकली एक डिस्ट्रक्शन है ज़मीन का, जो अर्थ की जो एक जो ऊपर वाली जो सरफेस होती है उसकी डिस्ट्रक्शन उसमें हो जाती है। और वो डिस्ट्रक्शन किस वजह से होती है? इंसान की एक्टिविटीज़ के नतीजे में जो है वो सरफेस जो है वो डिस्ट्रक्ट होना शुरू हो जाती है। जैसे कि आप लोगों को यहाँ पिक्चर में भी दिखाया गया है कि कुछ ऐसी जो ज़मीनें होती है वो बंजर बन चुकी होती हैं कि वहाँ पर आप फसलें जो है वो काश्त नहीं कर सकते। और वो ना तो वो फसलों की काश्त करने के लिए ज़मीन रहती है, और वो इवन वहाँ पर समटाइम्स तो एक ऐसी भी एक फॉर्म ऑफ अर्थ देखी गई है कि जहाँ पर इवन आप रेजिडेंशियल एरिया भी जो है वो इनिशिएट नहीं कर सकते इस तरह के प्रोजेक्ट। सो ये भी एक्चुअली जो है ये डिस्ट्रक्शन अर्थ की अपर सरफेस में होती है। तो ये भी होती है एक्चुअली में ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से, उन नेगेटिव एक्टिविटीज़ की वजह से जिनकी वजह से माहौल में एक्चुअली में बिगाड़ पैदा हो सकता है। सो वी आर नीड, देयर इज अ डायर नीड टू resolve these issues on the priority basis, otherwise this will lead to the very bad consequences for the states, for the and for the human health as well. Then we have another type of issue, that is the climatic change. The climate change phenomena refers to the seasonal change over a period with respect to the growing accumulation of greenhouse gases in the atmosphere. स्टूडेंट, ये क्लाइमेटिक चेंज जो है बेसिकली ये ग्लोबल वार्मिंग के नतीजे में भी होता है। और ये क्यों होता है? इसलिए होता है कि ये ग्रीन हाउस गैसेस जो है एमिशन होती है, ग्रीन हाउस गैसेस एमिशन जो है एटमॉस्फेयर में, उस गैसेस का इंटरेक्शन जो है नेचुरल एनवायरनमेंट के साथ वो एक सूटेबल इंटरेक्शन नहीं होता, जिसकी वजह से जो है क्लाइमेटिक चेंज होता है। और उस क्लाइमेटिक चेंज की वजह से हम विटनेस करते हैं कि वेदर्स जो हैं उनके ड्रास्टिक लेवल पर चेंजेस देखने को मिले हैं कि कुछ स्टेट्स में समर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा प्रोलॉन्ग हो जाते हैं, और कुछ में विंटर्स जो है वो बहुत ज़्यादा प्रोलॉन्ग कर जाते हैं। सो ये सब कुछ क्लाइमेटिक चेंज, अगर हम आज से कुछ सालों पहले देखें, आज से कुछ 10 साल पहले अगर हम देखें, तो माहौल जो था दैट वाज नॉट मच पोल्यूटेड एंड देयर वर नॉट विजिबल क्लाइमेटिक चेंजेस। माहौल जो था वो एक अपने नेचुरल फिनोमेना और प्रोसेस को फॉलो करते हुए उसमें चेंजेस आती थी। बट यहाँ पर कुछ सालों में देखने को मिला कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ इस हद तक डेंजरस जो है वो साबित हुई कि इंसानी एक्टिविटीज़ का डिजास्टर्स इफेक्ट होना शुरू हुए, और ह्यूमन हेल्थ जो है कॉन्सिक्वेंटली जो ज़्यादा जो इफेक्ट होती हैं इन सब एक्टिविटीज से वो ह्यूमन हेल्थ इफेक्ट होती है। Then there is another issue of overpopulation. The number of inhabitants in the planets arriving at unattainable levels as it confers deficiency of assets like water, fuel and food. एक और जो बहुत बड़ा एक जो कॉमन इशू दुनिया में देखने को मिला कि जो ओवर पॉपुलेशन जो है उस का एक मेजर इशू क्रिएट हो गया, क्योंकि स्टेट्स जो हैं some states have made the policies to control this issue, but mostly states have no policies in order to tackle this issue of overpopulation. अगर किसी भी मुल्क के अंदर overpopulation होगी, एक स्पेसिफिक रेट से ज़्यादा population एक्सीड कर जाएगी, तो उसमें क्या होगा, जो नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं कुदरती तौर पे एग्जिस्ट कर रहे, उनमें डेफिशिएंसी होना शुरू हो जाएगी, लाइक वाटर, फ्यूल एंड फूड जो है उसमें स्कैर्सिटी का इशू होना शुरू हो जाएगा, और कॉन्सिक्वेंटली माहौल जो होगा उस पर भी असर पड़ेगा, और ह्यूमंस के लिए जो है एक मुश्किल हो जाएगी कि उस इशू को टैकल करें। सो दिस देयर शुड बी पॉलिसीज एट द डोमेस्टिक लेवल टू टैकल दिस इशू, एंड इट कैन वेरी फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। हर स्टेट जो है उसके अपने पैरामीटर्स और अपने पॉलिसीज हो सकती हैं जिसके मुताबिक वो इस इशू को डील कर सकते हैं। देन वी हैव अनदर इशू ऑफ डिफॉरेस्टेशन. Deforestation is the removal of forest or stands of trees where the land is there after converted to a non-forestry. I have tried to show this deforestation issue from
दिस पिक्चर एज वेल कि डिफॉरेस्टेशन जो है वो पाकिस्तान के अगर हम कॉन्टेक्स्ट में बात करें स्टूडेंट, तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन इशू that there is a very common trend of deforestation, and another issue is that there is no trend of plantation of the trees, and if once the trees are planted then there is no trend of taking care of those plants, and consequently क्या होता है कि डिफॉरेस्टेशन कर दी जाती है, जंगलात का कटाव कर दिया जाता है रेजिडेंशियल एरियाज को डेवलप करने के लिए या लकड़ी के इस्तेमाल के लिए, फर्नीचर के लिए, या कुछ रिमोट एरियाज में लकड़ी से चूल्हे भी जलाए जाते हैं, उस इशू के लिए भी यूज होती है लकड़ी। लेकिन इस इशू का जो है वो डायरेक्ट जो है वो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन से लिंक होता है ये वाला इशू। अगर आप दरख्त नहीं उगाएंगे तो आपका एक हेल्दी इन्वायरमेंट जो होगा वो आप अटेन नहीं कर सकते, आपका माहौल जो होगा उसमें बिगाड़ होना शुरू हो जाएगा, आपको इशू होना शुरू हो जाएंगे, और आप सिर्फ प्रेजेंट स्टेट में ही नहीं बल्कि प्रेजेंट लोगों के लिए, जनरेशन के लिए, बल्कि फ्यूचर जनरेशन के लिए भी आप जो है वो प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट हो जाती है इश्यूज। देन देयर इज अनदर इशू ऑफ नेचुरल डिजास्टर्स। नेचुरल डिजास्टर्स लाइक अर्थक्वेक, फ्लड, साइक्लोन्स, वोल्केनिक्स can be unpredictable, devastating, and can cause irreparable damage. This is one of the issues that I was talking in the start of my lecture. Natural disasters जो हैं they are beyond human control. They are also termed as the acts of war. ये वो issues हैं जिसमें floods आते हैं, earthquakes आते हैं, cyclone, volcanoes, eruptions का issues आते हैं, और ये itself अपने साथ बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन जो है वो लेके आते हैं, लेकिन इस डिस्ट्रक्शन को आप हैंडल नहीं कर सकते क्योंकि ये ह्यूमन कंट्रोल के बियॉन्ड। लाइट एंड नॉइज पोल्यूशन। नॉइज पोल्यूशन इज अनदर form of pollution that causes temporary disruption in noise. I have tried to show this noise pollution and light pollution issue from this diagram कि ये जो है ये तो totally human एक्टिविटीज का नतीजा है कि जब आपके मुल्क में जब बहुत ज़्यादा व्हीकल्स का यूज़ होगा, इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ होगा, तो आप कहीं ना कहीं जो है इंसान जो है उनके हीयरिंग सेंस जो होगा उस पर इफेक्ट हो जाएगा, और ये एक बहुत सीरियस हेल्थ हैजर्ड जो है वो क्रिएट करता है ह्यूमन हेल्थ में। सो दिस इज टोटली domestic phenomena which can only be tackled through the state policies only. Environmental issues in Pakistan, there are further environmental issues that the states are facing globally. Now there are some environmental issues that are totally limited to Pakistan. That is the cutting of forest. A lot of number of forest trees are being cut in northern areas for timber as well as fuel. ये जो मैंने आपको बताया कि नॉर्दर्न एरियाज में टिम्बर के पर्पस के लिए जो है वो लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है, और उसके लिए जंगलात का कटाव जो है दैट इज अ वेरी कॉमन प्रैक्टिस व्हेन इट कम्स टू द नॉर्दर्न एरियाज ऑफ पाकिस्तान। Second is pollution from factories. We need a cooperative compliance from the factories. The Federation of Pakistan Chamber of Competence and Industry should take the lead in this part. के वाली जो धुआं है वो एक एनवायरमेंटल पोल्यूशन क्रिएट कर रही है, और पाकिस्तान इसको टैकल कर सकता है तो सिर्फ उससे टैकल कर सकता है अगर आप पॉलिसीज बनाएं, अदरवाइज देयर इज नो सॉल्यूशन एक्सेप्ट टू मेक द रीजनेबल पॉलिसीज टू डील विद दिस इंडस्ट्रियल माफिया। देन हाई पोल्यूशन इन कराची। कराची इज अ वेरी क्राउडेड सिटी हाउसिंग people from all the parts of the country. So due to crowded city, there is a lot of pollution which causes environmental issues. Karachi जो है that is another important and metropolitan cities of the Pakistan. एक बहुत ही ओवर क्राउडेड सिटी है, और ओवर क्राउडेड है तो इसका मतलब है कोई पॉपुलेशन वाला इसके नेचुरल रिसोर्सेज की कंजम्पशन हो रही है, स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज है, और पोल्यूशन जो है क्रिएट हो रही है। वहाँ पर भी होनी चाहिए इन इश्यूज के साथ डील करने के लिए, जो कि एक प्रोविंशियल मैटर है। सिंध गवर्नमेंट जो है उसको इस चीज़ को टैकल करने की जरूरत है थ्रू पॉलिसीज। अनअवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। अनअवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज द मेन इशू अकॉर्डिंग टू द रीसेंट रिपोर्ट ऑफ इंटरनेशनल Fund Pakistan, ranked third in the list of countries which are facing
वाटर शॉर्टेज। जैसे कि मैंने आपको बताया कि वाटर शॉर्टेज जो है वो एक्चुअली में क्यों होती है, इन्हीं तमाम इशूज़ की वजह से कि आप जब आपकी ओवर पॉपुलेशन होगी तो उसमें आपके नेचुरल रिसोर्सेज जो होंगे वो उनमें कमी होना शुरू हो जाएगी। और सबसे बड़ा इशू आता है वाटर स्कैर्सिटी का। ये वाटर एक नेचुरल रिसोर्स है और अगर आप उसमें पॉपुलेशन ज़्यादा होगी तो कुछ चीज़ें जो है वो उनमें कमी आना शुरू हो जाएगी। और उसको सिर्फ आप डील कर सकते हैं अगर आप जो है पॉलिसीज़ बनाए सिर्फ तब, अदरवाइज आप इन चीज़ों को डील नहीं कर सकते। Then there is another important issue of CO2 emissions, that is carbon dioxide issue। in 20% जो है वो एक हाई रेशियो देखी गई है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इमिशन 20% जो है वो ज़्यादा हो गई है। इंक्रीज ऑफ 35% 1995 to 2005। अब 1995 के पीरियड से 2005 के पीरियड तक 35% जो है वो इसमें इंक्रीज देखा गया कार्बन डाइऑक्साइड की इमिशन में। फिर डिक्रीज देखा गया 9% डिक्रीज और 2008 से 2009 ये वो ईयर था जिसमें पाकिस्तान में कार्बन डाइऑक्साइड में एक उसकी इमिशन में डिक्रीज जो है वो देखा गया। कार्बन फुटप्रिंट इंक्रीज बाय 12% ऑफ द पीरियड। अब फिर जो है वो एक उसमें राइज जो है वो देखा गया। सो इन चीज़ों को पाकिस्तानी गवर्नमेंट को जरूरी है कि पॉलिसीज बनाए इन सब चीज़ों को टैकल करने के लिए, अदरवाइज ये चीज़ें अगर एक लिमिट से बढ़ जाएँ तो फिर प्रॉब्लमेटिक। Steps to overcome this issue now we will discuss those steps that are needed to adopt as soon as possible in order to deal with these environmental issues which we have discussed in the above slides. Environmental problem arises due to our irresponsibility towards our environment, which do not harm us only, but our future generations as well. कंजर्व वाटर रिसोर्सेज जो हैं उनको एहतियात से यूज़ करें। क्लीन द एयर, हमारी जो आबो हवा है उसको साफ रखें। इंडस्ट्रियल जो है उनके साथ स्टेट जो है वो एग्रीमेंट करें कि किस तरीके से चीज़ों को काम किया जा सकता है। रिड्यूस वेस्ट, दिस इज आल्सो एसोसिएटेड विद द इंडस्ट्रीज। नीड फॉर ट्री प्लांटेशन इन अर्बन एरियाज, जितने भी अर्बन एरियाज हैं सिटीज जो हैं उनमें प्लांटेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। रिसाइकलिंग का प्रोसेस जो है वो ज़रूरत है। पास ऑन पेपर्स और ये प्लास्टिक और इन सब चीज़ें जो हैं इनको अवॉइड करने की ज़रूरत है। और इन सब चीज़ों को जो है वो सिर्फ और सिर्फ अवॉइड किया जा सकता है जब हम प्रॉपर जो है पॉलिसीज़ अपनाएं। सो आई वुड लाइक टू कंक्लूड माई प्रेजेंटेशन हेयर by saying that there is a dire need at the domestic level that Pakistan is required to make certain policies regarding the environmental issues in order to tackle all the environmental issues. If we do not make such policies on time, then we will witness a visible environmental degradation in the coming few years. So students, I will upload this lecture in your Google Classroom. If you have any questions, feel free to ask through email or through your CRs. Stay at home and stay safe and take care of yourself. Thank you so much.